Hello and welcome to my channel. Today I will be teaching English. We all love stories, isn't it? Here we have two interesting stories about Akbar the Great and Birbal. So let's start. Class 6 English Pal Bharati, Chapter 1.2, Who's the Greatest? Students, if you have the textbooks, please open it, page number 2. So, students, I will read and explain these two stories to you all. I will use both the languages, English as well as Hindi. Okay? I hope you will understand. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire. Children, the word empire means a large area under the king's rule. Vast means very large. A very strong army, untold wealth. Untold means limitless. But because he was a good human, why is Akbar known as the great ruler? Not only because he had a very big army or a very big empire or a lot of money or a lot of wealth, not only because of that, but because he was a very good human. How do we come to know if he was a good human or not? He cared for his subjects. Now, subjects means people over here. He had a great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religion. He was a patron of art and culture. Patron means support. He used to support. Patron means support. He used to support art and culture. He used to give them encouragement. The nine gems or Navratna in his courts were famous. So, students, do you know the meaning of Navratna? Nine gems or Navratra refer to the nine members, means nine people, nine wise men of the court of Mughal emperor. And the nine gems were all made up of artists, musicians, writers, finance ministers, warriors and poets. So ये जो पूरे नाइन जो लोग हैं ये उनके नवरत्न थे जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे. जैसे आपने तानसेन का नाम सुना होगा जो बहुत ही बेहतरीन गाना गाते थे, वो एक थे. और अभी जिसके बारे में हम आज स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, बिरबल, तो वो भी उन नवरत्न में से एक थे. The nine gems or the Navratna in his court were famous. Many people believe that gems Birbal was the closest to emperor's heart. इन सब में से जो बिरबल थे वो अकबर बादशाह के बहुत ही करीब थे. He was his favorite. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court. So pose का मतलब क्या है? He used to love to give a question to the court or any problem. He liked to discuss a problem in the court. And Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. We don't know whether all the Akbar Birbal stories that we hear today have any basis in history. इसका मतलब है कि जितने भी हम अभी स्टोरीज सुनते हैं, आपने इसके अलावा भी बहुत बार स्टोरीज सुनी होगी अकबर और बिरबल की. हम नहीं जानते कि ये सच में हुई है या नहीं, बट ऐसे ही है. ओके, दे हैव बीन हैंडेड डाउन यानी ये जैसे एक इंसान ने दूसरे को बोला, एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को, फिर दूसरे जनरेशन को, और उसमें से जो राइटर्स थे उन्होंने वो अपने हिसाब से लिखा है. ये सच में हुआ है या नहीं हम नहीं जानते. वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर बिरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री. दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन mainly by word of mouth. Here are two of them. So let's start the story. One day, Emperor entered the court with a serious expression on his face. सीरियस का मतलब क्या है? एकदम ऐसे थॉटफुल एक्सप्रेशन, एकदम ऐसे कुछ सोच में थे, ऐसे एक्सप्रेशन अपने फेस पे लेके अपने कोर्ट एंटर होते हैं. एज सून एज ही वॉज सीटेड ही सेड, जैसे ही वो बैठते हैं वो अपना क्वेश्चन बोलते हैं, वो अपनी बात पूछते हैं. I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? So वो बोलते उस इंसान को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए जो मेरी मुस्टैच को खींचेगा. The court was stunned. Stunned यानी shocked. सब लोग surprised थे. They all were surprised and shocked. Pull emperor's mustache? It was unheard of. सो वो बोलते अरे ऐसा कौन कर सकता है, ऐसे तो कभी हमने सुना ही नहीं. अनहर्ड, नेवर हर्ड ऑफ. फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ whip, exclaimed one nobleman. फ्लॉग का मतलब है मारना. एक जो हंटर होता है ना उससे मारना. तो एक बोलता है कि नहीं, उसको मारना चाहिए.
वो हंटर से मारना चाहिए. That's not enough. Put him in the jail without food and water, said another. दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं ये इनफ नहीं है, इसको हम मारेंगे और उसको जेल में डालेंगे और उसको खाना पानी नहीं देंगे. Whip him, beat him, hang him, cut off his offending hands. Offending hands यानी जो हम offend यानी गलत करना, something to do something wrong. सो वो एक बोलता है कि नहीं ये सब नहीं, इसको मारना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उसके हाथ जो जिन हाथों ने ये गलत काम किया उन हाथों को काट देना चाहिए, कट ऑफ. एजिटेटेड courtiers began to cry out. एजिटेटेड यानी बहुत गुस्सा, बहुत डिस्टर्ब, सबको बहुत बुरा लगा कि ऐसे कौन क्यों करेगा. और क्राई आउट यानी वो एक के बाद एक शाउट करने लगे. ओनली बिरबल वॉज साइलेंट. He was even smiling a little. So अभी जो सब लोग ऐसे शाउट कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बिरबल क्वाइट है and he is quietly listening everything and he is also smiling. To which Akbar is asking, what do you say, Birbal? What is your opinion? So Akbar अब पूछता है आपका क्या opinion है बिरबल. In my opinion, O giver of peace to the world, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, अपने माई मेजेस्टी, तो उसके जगह पर उन्होंने ये डाला है. द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मील. सो बिरबल का आंसर क्या होता है कि जिसने ये ऐसा किया है, द ऑफेंडर, द वन हु इज़ गिल्टी, शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मील, कि उसको एक उनका फेवरेट खाना देना चाहिए, मिठाई देनी चाहिए. राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वहाँ के जो कोर्टियर्स होते हैं वो एकदम गुस्सा होकर बोलते हैं कि आप पागल हो गए हो. गिव स्वीट मील फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस. ग्रेव यानी बड़ा, ह्यूज. सो बोलते हैं कि आप पागल हो गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है. द कोर्टियर बिगैन टू से. बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन. सो अब जब उसने ये ऐसी बात की तो उसको डेफिनेटली उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. येस, हु वुड बी सो बोल्ड as to pull the emperor's mustache, only his grandson. बोल्ड का मतलब है ब्रेव, बहादुर. सो वो बोलता है कि इतना बहादुर या इतना ब्रेव या किसी में इतनी हिम्मत आएगी ही कहाँ से जो एम्परर की मुस्ताच खींच सके. तो ये तो उसका ग्रैंडसन ही होगा, और जो ग्रैंडसन है उसको तो आप मार नहीं सकते, उसको आप फ्लॉग नहीं कर सकते, उसके हाथ नहीं कट सकते, ऑफकोर्स उसको हम स्वीट ही देंगे. When Akbar heard this, he burst out of laughing, because that is exactly what happened in the morning. So burst out of laughing means एकदम से हंसने लगा. He just laughed suddenly. Okay, that is burst out of laughing. Akbar heard this, he burst out of laughing. That is exactly what happened in the morning. जब अकबर ने ये explanation सुना तो वो एकदम से हंसने लगा और उसको समझ में आया कि हाँ यही सुबह हुआ था. So that answer was absolutely correct. So dear students, did you all enjoy this story? I hope so. So let's now move on to another one. It's on your page number 3 of your textbooks. On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a great opportunity to shower praises on Emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. सो एक बार क्या होता है, अकबर, रिलैक्सिंग का मतलब है आराम करना, दे वर जस्ट रेस्टिंग लाइक दैट. आप जब वेकेशंस में कभी होटल में जाते हो तो कैसे आप रिलैक्स करते हो, पूल के साइड में एकदम रिलैक्स, तो उस टाइप का रिलैक्सिंग. ओके, दे वर ऑल रिलैक्सिंग. सो कोर्टियर्स के दिमाग में आता है, ऐसे मन में आता है कि चलो हम अकबर राजा को उनको प्रेज उनकी तारीफ़ करते हैं. और अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है ना अपनी तारीफ़ सुनना. तो उनकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि उसके अगेंस्ट हमको वो अच्छे कुछ तो ऑफ़र, कुछ तो हमको उसके बदले में मिलेगा. और वो क्या करने लगते, एक के दे स्टार्टेड कम्पीट करना है ना, मुकाबला करने लगे एक दूसरे से. एक ने बोला तो उससे बेहतर दूसरा बोल रहा है, फिर उससे बेहतर दूसरा बोल रहा है, और ऐसे कर वो ये सब क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मिलने का लालच था. तो देखिए अब कैसे वो प्रेज करते. तो एक बोलता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स. एक बोलता है कि आप सबसे महान राजा है, सबसे महान. दूसरा बोलता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट लिव्ड ऑन द अर्थ. वो बोलता है कि जितना भी हमारा अर्थ है, जितनी बड़ी दुनिया है, उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट और ग्रेटेस्ट आप ही है. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और द अर्थ.
बोलता है कि जितने भी पीपल है उसमें से भी आप सबसे ग्रेटेस्ट है, आप किंग तो ग्रेटेस्ट है लेकिन आप इंसानों में भी सबसे ग्रेटेस्ट है। दूसरा बोलता है यू आर एज ग्रेटेस्ट एज गॉड ऑल माइटी, तो यू आर ग्रेटर एज गॉड ऑल माइटी। एक बोलता है कि आप तो भगवान जैसे ग्रेट हो, भगवान इतने ग्रेट हो। तो दूसरा बोलता है यू आर ग्रेटर देन गॉड ऑल माइटी। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, हमारे राजा तो भगवान से भी महान है, भगवान से भी ग्रेट है। नाउ अकबर वॉज नो फूल, अकबर वॉज नो फूल यानी अकबर कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरी झूठी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझे फॉर नो रीज़न तारीफ़ कर रहे हैं। नाउ अकबर वॉज नो फूल, ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, फॉल्स प्रेज में झूठी तारीफ। He stopped the courtiers and asked, क्या पूछता है, Do you all believe so? पूछता है कि आप जो बोल रहे हो कि मैं भगवान से भी महान हूँ, भगवान से भी महान हूँ, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हो, बिलीव करते हो? Yes, they all answered in one voice. In one voice means सबने एक साथ आंसर किया। All right, then prove it to me. Tell me at least one thing that I can do but God Almighty will not be able to do. वो बोलते हैं कि आप अभी मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बताना जो मैं कर सकता हूँ पर हमारे ऑलमाइटी, हमारे गॉड जो है वो नहीं कर सकते। अदरवाइज यू विल ऑल इनकर आवर रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। आप मुझे कल सुबह तक आंसर नहीं दोगे तो जो भी आपके लॉयल प्लेजर्स मिले हैं इनकर यानी आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको सफ़र करोगे आप, ओके, आपको कुछ भी नहीं, आपको यहाँ से निकाला जाएगा। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स, दे वर ऑल इन अ प्रॉपर फिक्स यानी इन अ ग्रेव, इन अ बिग प्रॉब्लम, इन अ प्रॉब्लम या बहुत बड़ी मुश्किल में थे वो। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। वो सोच रहे थे ऐसा कौन सा काम है जो अकबर बादशाह कर सकता है पर भगवान या गॉड नहीं कर सकता। इन द एंड दे वेंट टू बिरबल, व्हेन बिरबल हियर्ड देयर स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी। सो बिरबल ने सब सुना और उनको कहा कि आप मत ज़्यादा परेशान हो, मैं कुछ ना कुछ आंसर फाइंड आउट करूँगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन आता है। The next morning, the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. So, हर कोई आया था कोर्ट में देखने के लिए कि बिरबल का आंसर क्या है। सब बहुत ही क्यूरियस थे, क्यूरियस है ना, बहुत उनको जानना था, उत्सुकता थे उनको। Well, said the emperor, have you found a good answer to my question? Or are you ready to leave the court forever? अकबर बादशाह पूछते हैं, well, are you ready with the answer? या मैं तुम सबको इस कोर्ट से बाहर निकालूं हमेशा के लिए? Just then बिरबल stepped forward and bowed low. बादशाह ऐसे बोलते तो बिरबल फ्रंट में आता है, उनको ऐसे रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाता है और उनको क्या बोलता है, सुनो। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर ग्रेटेस्ट। वो बोलते कि आप ऐसे नाराज़ नहीं होना जो आपको बहुत महान समझते हैं। There's certainly at least one thing that you can do but God Almighty cannot. वो बोलते हैं बाकी तो नहीं पर एक ऐसी चीज़ तो श्योरली है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सिर्फ आप कर सकते हो बट ऑलमाइटी गॉड नहीं कर सकता। अकबर लुक्ड एट बिरबल थॉटफुली, वो एकदम सोच में आके बिरबल को पूछते हैं एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, पूछते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है। तो एज यूजुअल बिरबल उनका आंसर देखिए, आप सुनिए क्या आंसर करता है। When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. बैनिश का मतलब है रिमूव या बैन करना, ओके। सो जब आपको किसी को पनिश करना है आप उसको आपके किंगडम से बाहर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बैनिश का दे सकती हूँ, जब आप मस्ती करते हो क्लास में, करेक्ट, तो आपको टीचर कैसे क्लास से बाहर निकाल देती है कभी कभी, ओके, तो उसको बैनिश कहते हैं। सो टीचर व्हेन शी रिमूव्स अ चाइल्ड आउट ऑफ द क्लास, सो बैनिश, ओके, दैट्स कॉल्ड बैनिश। आई होप यू अंडरस्टूड दैट बैनिश वर्ड। But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. So, बिरबल क्या बोलता है कि जब आपको गुस्सा आ जाएगा किसी पे, आपको किसी को पनिश करना है तो वो आप
आपके किंगडम से उसको निकाल सकते हैं। बट अगर यही काम भगवान को करना है, गॉड को करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज गॉड का जो किंगडम है वो तो सब इधर है, पानी भी उसी का है, लैंड भी उसी का है, एवरीथिंग इज ऑफ गॉड. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ गॉड टू बैनिश anyone from his kingdom. Akbar's face was lit up with smile. lit up का मतलब एकदम से इसके चेहरे पे स्माइल आई, बिकॉज पहले तो उसका थॉटफुल फेस था, बाद में एकदम से उसके चेहरे पे स्माइल आई. और क्या वो बोलता है? दैट्स वेरी क्लेवर बिरबल, वेरी क्लेवर ऑफ यू. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. वो बोलता है कि आपने मुझे ये तो बताया कि मेरा एक एडवांटेज है कि मेरे पास गॉड में नहीं हूँ, लेकिन एक एडवांटेज भी है, लेकिन आपने ये भी बताया कि इस सब में गॉड कितना ग्रेट है और मैं आप पे भरोसा करता हूँ. Akbar was so pleased with that answer that he forgave the courtiers for their stupidity. अकबर इस आंसर से इतने खुश हो गए, वो इतने हैप्पी थे कि जो ये कोर्टियर्स ने स्टूपिडिटी की थी वो उन्होंने उसको माफ़ किए, फॉरगिव कर दिए. So my dear students, I hope you have understood both the stories, which were very simple and easy. Right now on the screen you are seeing your page number 4. Okay. As you see the sentences, many sentences are written in the inverted commas, okay? A lot of exclamation marks is given. I hope you are able to identify them. You can see you are the greatest of all in the heaven of God, and then there's an exclamation mark, and then there's a double inverted comma. I just want, these are all punctuation marks, students. I want you to observe them and learn them. To write and speak proper English, we should always use them correctly. Okay, students? So, my dear sisters that have come in the lesson, so what I want you to do, I will explain you these phrases. I'll give you one example. I'll make a sentences, and then you are going to do the same afterwards. Okay? Now, untold wealth. I had told you the meaning of untold. Untold and limitless. Okay? So, I'll make a sentence out of it. Mr. Ambani has untold wealth. यानी मिस्टर अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है. कम अप विथ यानी टीचर कम्स अप विथ ग्रेट आइडियाज़. हमेशा हमारी टीचर न्यू आइडियाज़ लाती है. बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग. बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग में एकदम से हंसी आना. माई यंगर ब्रदर बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग व्हेन आई क्रैक्ड अ जोक. ओके, तो मेरा भाई एकदम से हंसने लगा जब मैंने एक जोक क्रैक किया. इन अ प्रॉपर फिक्स. इन अ प्रॉपर फिक्स यानी मुसीबत में आना, टू गेट इन टू ट्रबल. Jonah was in a proper fix when he missed his flight. So students, what are you going to do? You are just going to write the sentences on your own. Okay, you're going to use these phrases and write the sentences on your own. Okay students, that's all for today's lesson. Please read the chapter one more time. If you like my teaching, do share it with your friends, and also like, comment and subscribe to my channel. Till then students, be home, be safe, bye bye.